بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ چمکور صاحب۔ جموں میں پلیگ، سری نگر میں کالرا، اب ہماری جائے پناہ چمکور صاحب تجویز ہوئی۔ جموں توی کے ریلوے اسٹیشن سے ہم ٹرین میں سوار ہوئے تو ریل کا یہ پہلا سفر مجھے بڑا افسانوی محسوس ہوا۔ ریل چھوٹتے ہی میں کھڑکی سے باہر منہ نکال کر بیٹھ گیا اور گرد و پیش کے عجیب و غریب ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ نزدیک کے کھمبے برق رفتاری سے پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے، دور کے درخت بڑے آرام سے ہمارے ساتھ ساتھ آگے کی طرف رواں تھے۔ بستی کائنات ساکت و جامد تھی۔ کچھ دیر کے بعد پہیوں کی گڑگڑاہٹ میں تال اور سر کے ساتھ طبلوں کی تھاپ بجنے لگی اور انجن بھپا بھک چھکا چھک میں بھی موسیقی کی بہت سی دھنیں سما گئیں۔ ریل کی پٹری میں جب کوئی موڑ آتا تھا تو ٹرین ربڑ کے سانپ کی طرح بل کھا کر اٹکیلیاں کرتی ہوئی گزر جاتی تھی۔ ایک موڑ پر میں ٹرین میں لگے ہوئے ڈبوں کی تعداد گن رہا تھا کہ شاں شاں شوں شوں کر کے انجن نے بڑے زور سے دھواں چھوڑا اور کوئلے کا ایک ذرہ میری آنکھ میں پڑ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میری پلکوں کے اندر دیا سلائی رگڑ کر جلا دی ہو۔ آنکھیں مل مل کر میرا برا حال ہو گیا اور دائیں آنکھ بوٹی کی طرح سرخ ہو کر سوج گئی۔ سزا کے طور پر مجھے کھڑکی والی سیٹ سے اٹھا کر کمپارٹمنٹ کے درمیان ایک محفوظ جگہ پر بٹھا دیا گیا۔ چھوٹے بڑے اسٹیشن آتے تھے، ٹرین رکتی تھی، گارڈ سبز جھنڈی ہلاتا تھا، انجن سیٹی بجاتا تھا اور گاڑی پھر رواں دواں ہو جاتی تھی۔ پلیٹ فارم پر بڑی چہل پہل تھی، کلی اور مسافر بدحواسی سے ادھر ادھر بھاگتے تھے، چھابڑیوں اور خوانچے والے بھانت بھانت کی صدائیں لگاتے تھے۔ ہندو پانی، مسلمان پانی، گرم پوری، گوشت، روٹی، لیمن، برف۔ میں دور ہی دور بیٹھا اس رونق کو بصد حسرت و یاس دیکھتا تھا اور دل میں عزم بالجزم کر لیا کہ جب کبھی میں اکیلا سفر کروں گا تو ہر بڑے اسٹیشن پر اتر کر کچھ نہ کچھ ضرور کھاؤں گا، چلتی ہوئی گاڑی سے لپک کر پلیٹ فارم پر اترا کروں گا اور جب ٹرین پھر حرکت میں آ جائے گی تو چھلانگ لگا کر دوبارہ اس میں سوار ہوا کروں گا۔ گارڈ کے روب داب نے بھی میرے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس کے ایک ادنیٰ سے اشارے کے سامنے گاڑی کا دیو ہیکل انجن بالکل بے بس تھا۔ سفید وردی، سفید ٹوپی، سرخ اور سبز جھنڈیاں، منہ میں وسل، گارڈ کی آن بان مجھے خوب بھائی اور میں نے جموں کی ہری ٹاکیز میں گیٹ کیپری کا ارادہ ترک کر کے ریلوے گارڈ بننا اپنا زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ لدھیانہ گزر کر غروب آفتاب کے بعد دوراہا کا چھوٹا سا اسٹیشن آیا، جہاں پر گاڑی نصف منٹ کے قریب۔ ہم نے جلدی جلدی سامان باہر پھینکا اور خود بھی کود کود کر نیچے اترے۔ پلیٹ فارم پر ہو کا عالم تھا، نہ روشنی، نہ کلی، نہ کوئی سواری۔ ہم نے اپنا اپنا سامان اٹھایا اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے بڑی مشکل سے نہر سرہند کے گھاٹ پر پہنچے، جو اسٹیشن سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھا۔ چمکور صاحب سے ہوتی ہوئی روڈ پر جانے والی کشتی تیار کھڑی تھی۔ کشتی مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ملاحوں نے کسی مسافر کی پھیلی ہوئی ٹانگیں سکیڑیں، کسی کے بازو کھینچے، کسی کا بچہ اٹھا کر اس کی گود میں ڈالا اور ہمیں بھی ٹھونس ٹھانس کر کشتی میں ایسے فٹ کر دیا جس طرح بوری میں فالتو آٹا دبا دبا کر بھرا جاتا ہے۔ آدھی رات کے قریب ملاحوں نے ہر مسافر سے 2 آنے چراغی وصول کی۔ ایک دھندلی سی لالٹین جلا کر ایک بانس سے لٹکا دی گئی اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ ہمارا سفر پانی کے بہاؤ کے خلاف تھا، اس لیے ایک موٹا سا لمبا سا رسا لے کر اس کا ایک سرا کشتی سے باندھا ہوا تھا اور دوسرے سرے پر 2 بیل جتے ہوئے تھے۔ ایک ملا سمدار لاٹھی کاندھے پر رکھے اور دوسرے ہاتھ میں سرکنڈے کی مشل جلائے بیلوں کو ہانکتا ہوا کنارے کنارے چل رہا تھا۔ کشتی کو کئی جگہ روک کر اس کے تلے میں بھرا ہوا پانی نکالا گیا۔ بہلول پور پہنچ کر بیلوں کی جوڑی تبدیل ہوئی۔ جب پو پھٹی تو صبح کی زرکار کرنوں میں نہر کے کنارے دور دور تک ایک طویل قطار نظر آئی، جیسے لوہے اور پیتل کی گھاگروں کو الٹ کر زمین پر رکھا ہوا ہو۔ جب نزدیک پہنچ کر غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ گھاگریں نہ تھیں بلکہ سکھوں کی قطار تھی، جو نہر کی طرف پشت کیے ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے تھے اور سر جھکا کر بڑے خضوع و خشوع سے برسر عام رفع حاجت فرما رہے تھے۔ جب کشتی ان کے قریب پہنچی تو چند سکھ جوان ہماری طرف منہ کر کے ننگ دھڑنگ کھڑے ہو گئے اور منہ سے بکرے بلا بلا کر بڑے فخر سے اپنے پوشیدہ علم الابدان کی تشریح کرنے لگے۔ کشتی میں سوار عورتوں نے اپنے چہرے دوپٹوں سے ڈھانپ لیے اور مد کھانس کھانس کر ایک دوسرے سے کھسیانی باتیں کرنے لگے۔ ملاح سب مسلمان تھے۔ ایک نوجوان کو جو تاؤ آیا تو اس نے بھی اپنا تہمد اٹھا کر سکھوں کو ترکی بترکی جواب دینے کا ارادہ کیا، لیکن عمر رسیدہ ملاحوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے بٹھا دیا۔ جب کشتی ان کے سامنے سے گزر گئی تو سکھ جوان بھی نہر کی جانب منہ کر کے بیٹھ گئے اور ازسر نو فطرت سے ہم کلامی میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کے قریب کشتی چمکور صاحب پہنچ گئی۔ دادی اماں نے ہمیں خوش آمدید کہا، اپنے پلو سے کھول کر کچھ لڈو کھانے کو دیے۔ ان کی عمر کوئی 104 برس کے قریب تھی، دانت مضبوط تھے، نظر تیز تھی اور چلنے میں وہ ہم سے بھی زیادہ سبک رفتار تھیں۔
दादी अम्मा के कदीमी मुलाजिम करम बख्श ने हमारा सामान उठाया। वो भी 70 बरस से ऊपर था। छिद्री दाढ़ी के बाल ऐसे मोटे मोटे थे जैसे चेहरे से रस्सियां लटक रही हों। सामान के बोझ तले भी उसे पसीना। उसके देसी जूते लोहे के खुरपे की तरह सख्त थे। उसने जूते खोलकर मेरे हवाले कर दिए और आग की तरह तपती हुई रेत पर नंगे पांव यूं खरामा खरामा चलने लगा जैसे सरसब्ज घास पर चहलकदमी कर रहा हो। करम बख्श के पाँव का तला नरी के जूते के तले से भी ज़्यादा सख्त और मजबूत था और खजूर और कीकर के बिखरे हुए कांटों पर वो बेतकल्लुफ़ बरहन्ना पा चलता फिरता रहता था। शदीद सर्दियों के ज़माने में अक्सर उसके पाँव की एड़ियों की जिल्द खुश्क होकर फट जाया करती थी। करम बख्श फ़ौरन गाँव के मोची के पास जाता था और जिस तरह फटे हुए जूतों को गांठा जाता है, ऐन उसी तरह अपनी एड़ियों की जिल्द भी खुशी खुशी टांके लगवा कर आया करता था। चमकौर साहब में बहुत से गुरुद्वारे और एक खानका थी। गुरुद्वारों में सबसे ऊंचा दर्जा कलगी वाले बादशाह गुरु के गुरुद्वारे का था। सिखों की रवायत के मुताबिक पंजाब के एक मुसलमान सूबेदार ने गुरु के 2 कमसिन साहबजादों को उस गुरुद्वारे की एक दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। साहबजादों के नाम बाबा अजीत सिंह और झज्जार हरी सिंह थे। अब इन्हीं के नाम पर इस गुरुद्वारे के साथ बाबा अजीत सिंह और झज्जार हरी खालसा हाई स्कूल भी कायम था। दूसरे गुरुद्वारे का नाम दमदमा साहब था। यहाँ पर किसी गुरु साहब ने तबल बजाया था। एक मुकद्दस मुकाम का नाम मसवाक साहब था। यहाँ पर एक गुरु साहब ने अपने दंदाने मुबारक पर मसवाक फरमाई थी। एक और पाकीज़ा जगह झाड़ साहब कहलाती थी। यहाँ पर किसी गुरु साहब ने गालिबन कुछ और किया होगा। चमकौर साहब की इकलौती खानका बाबा साहबा थी। बाबा साहबा दरअसल बाबा शहाबुद्दीन का उर्फ़े आम था। वो अपने ज़माने के साहिब करामत बुज़ुर्ग माने जाते थे। ज़ुहद व तक़वा इबादत के अलावा बाबा शहाबुद्दीन अपने इलाके के काजी भी थे और कस्बे मुआश के लिए नील का काम करते थे। बाबा साहब के सहन में नील के भरे हुए मटकों की कतारें पड़ी रहती थीं। एक रोज़ा आधी रात गए सिखों के गुरु अचानक बाबा साहब के अहाते में आ गए। गुरु साहब आलमे रूपोशी में जान बचाते फिर रहे थे क्योंकि उनके ताक़ुब में सरहिंद का हाकम फ़ौज की एक भारी जमीयत लेकर निकला था। गुरु साहब ने कहा, बाबा जी, अगर मैं इस जलती हुई भट्टी में कूद जाऊं तो शायद मेरी रूहानियत मुझे आग के ज़रर से बचा ले, लेकिन सरहिंद के मुग़ल हाकम से बचने के लिए इंसानी वसीला दरकार है। अगर तुम्हारे पास कोई वसीला हो तो बताओ। बाबा साहब ने जवाब दिया, गुरुजी महाराज, वसीला रूहानी हो या इंसानी, खुदा के हुक्म के बगैर मुयस्सर नहीं आता। आप अल्लाह का नाम लेकर नील के इस मटके में बैठ जाएं, शायद खुदा इसी में बेहतरी करे। गुरु साहब गाढ़े गाढ़े नील से भरे हुए एक मटके में बैठ गए। बाबा साहब ने मटके का मुंह कपड़े की जाली से ढांप दिया। सरहिंद के हाकम ने अपनी फौज की मदद से चमकौर साहब का कोना कोना छान मारा। गुरुद्वारों के गन्नथियों और नहंग अकालियों को ज़मीन पर लिटा लिटा कर खूब पिटवाया। बहुत से घरों की तलाशी ली। गन्ने के खेतों को काट काट कर रख दिया। कुछ सिपाही सलाम करने के बहाने बाबा शहाबुद्दीन के यहाँ भी आए। बातों बातों में उन्होंने बाबा साहब के घर का जायज़ा भी लिया और मायूस होकर लौट गए। रातों रात मुग़ल फ़ौज अपनी मुहिम पर आगे निकल गई। सुबह सवेरे बाबा साहब ने गुरु साहब को नील के मटके से बाहर निकाला और लिबास तब्दील करने के लिए उन्हें एक नए कपड़ों का जोड़ा पेश किया। गुरु साहब ने कहा, बाबा जी, अब मैं कभी सफ़ेद कपड़े ना पहनूंगा। आज से नीला रंग मेरे पंथ का रंग मुकर्रर हुआ। गुरु साहब बाबा शहाबुद्दीन का शुक्रिया अदा करके रुखसत हुए। चंद रोज़ बाद चमकौर के गुरुद्वारों के गन्नथी एक वफद की सूरत में बाबा साहब के पास आए। उन्होंने बड़े अदब न्याज से बाबा साहब की खिदमत में एक रेशमी थैली पेश की। इस थैली में गुरु बाबा साहब के हाथ का लिखा हुआ एक फरमान था जिसमें सारे सिख पंथ की तरफ से बाबा शहाबुद्दीन को अपना मोहसन माना हुआ था और इस एहसान के बदले गुरुद्वारों की कुछ ज़मीन भी दायमी तौर पर बाबा शहाबुद्दीन और उनकी औलाद के हक़ में वक्फ़ कर देने की पेशकश थी। बाबा साहब ने इस फरमान की पुष्ट पर गोरख मक्खी ज़ुबान में एक तहरीर लिख दी जिसका मफ़हूम ये था, अगर ये मौका गुरु साहब के साथ जहाद का होता तो बखुदा शहाबुद्दीन खुद अपने हाथ से उनका सर कलम कर देता, लेकिन ये जंग हाकम और महकूम का सियासी तनाज़ा है। गुरु साहब के साथ मैंने कोई एहसान नहीं किया, फ़कत अपना अखलाकी फ़र्ज़ अदा किया है। इसकी उजरत मेरे लिए हलाल नहीं। ज़मीन की पेशकश को मैं अपनी आल औलाद पर हमेशा के लिए हराम करार देता हूँ। अलबत्ता मेरी ख्वाहिश है कि चमकौर साहब की हदूद में सूअर का गोश्त लाना बंद कर दिया जाए। अगर सिख कौम ये दरख्वास्त मान ले तो ये उसकी ऐन अनायत होगी। सिखों ने बरज़ा रग़बत इस शर्त को कबूल कर लिया और उस वक़्त से चमकौर साहब में सूअर के गोश्त की सख्त ममानियत हो गई। चंद साल बाद जब बाबा साहब की वफ़ात हुई तो दूर दराज से हज़ारों हिंदू, सिख और मुसलमान उनके जनाजे में शिरकत के लिए हाजिर हुए। अकीदतमंदों ने अपने हाथ से बाबा साहब का मकबरा तामीर किया। मकबरा एक सादा सी चारदीवारी पर मुश्तमिल था। बाबा साहब की वसीयत के मुताबिक इस पर छत न डाली गई। बाबा साहब की ज़िंदगी ही में ये रस्म चल निकली थी कि गांव में आने और या जाने वाली हर बारात उनकी खिदमत में ज़रूर हाजिर हो जाती थी।
बाबा साहब कच्चे चावलों में शक्कर मिलाकर एक एक मुट्ठी बारातियों में बांट देते थे। हिंदू, सिख, मुसलमान सब इस तबरक को दूल्हा दुल्हन के लिए नेक फाल समझते थे। बाबा शहाबुद्दीन की वफ़ात के बाद इस रस्म में और भी शिद्दत आ गई। अब हर बारात बाबा साहब के मज़ार पर हाजिर होती। बाराती कुछ कच्चे चावलों में शक्कर मिलाकर मज़ार पर फेंकते और फिर उनको इकट्ठा करके दोबारा बारातियों में तकसीम कर देते। चावलों के जो दाने मज़ार पर पड़े रह जाते थे उनको चुगने के लिए बहुत से कबूतर आमतौर पर वहाँ जमा रहते थे। बाबा साहब के साथ कबूतरों की अकीदतमंदी के मतलब तरह तरह के और रफ्ता रफ्ता कबूतरों को इतना तकद्दुस हासिल हो गया कि चमकौर साहब की हदूद में उनका शिकार हराम शुमार होने लगा। जिस मुकाम पर बाबा शहाबुद्दीन का मज़ार वाक़या था उससे कुछ फासले पर एक वसी और रीज़ मैदान फैला हुआ था। इस मैदान को पांडवाना कहते थे। चमकौर के खुशफाहम बड़े बूढ़ों को इस बात का यकीन था कि कौरव पांडु की महाभारती लड़ाई इसी मैदान में हुई थी। ज़रा सा कुरेदने पर इस मैदान से तरह तरह के पुराने सिक्के और जंगी हथियार मिल जाते थे। यूं भी तेज़ बारिश के बाद जगह जगह इंसानी ढांचों की हड्डियाँ और खोपड़ियाँ बाहर निकल आती थीं। अगर हवा तेज़ हो तो इन हड्डियों की रगड़ से जा बजा चिराग से जल उठते थे। बरसात की अंधेरी रातों में ये रोशनियाँ ख़ास तौर पर माफूकुल फितरत समा बांध देती थीं। रफ्ता रफ्ता ये मशहूर होने लगा कि ये रूहानी दिए भी बाबा साहब की करामत से रोशन होते थे। चुनाचे जब कभी रात के वक्त पंडवाना के मैदान में बाबा साहब की ये करामत जगमगाती तो गांव की बड़ी बूढ़ियां सर ढांप कर कोठों पर चढ़ जातीं और दामन फैला फैलाकर बाबा साहब से बरकत की दुआएं मांगने लगतीं। बाबा शहाबुद्दीन की वफ़ात के बाद उनके इकलौते फर्जंद भोले मियाँ ने नील का कारोबार संभाला। भोले मियाँ का असली नाम कासम अली था। वो महज दीनदार थे, दुनियादारी से कतई बेगाना थे। सीधी सादी सबर शुक्र की ज़िंदगी बसर करते थे। उनके बाद उनके बेटे और पोते ने भी इसी डगर पर साबित कदम रहकर ज़िंदगी गुजारी। लेकिन चौथी पुश्त में जाकर चौधरी मेहताबुद्दीन ने एक नया रंग पकड़ा। सबसे पहले उन्होंने गुरुद्वारों के गरनथियों से मिलकर ज़मीन की पेशकश पर हक जमाने की कोशिश की। यहाँ से नाकाम होकर उन्होंने नील का एक पुराना मटका लेकर उसे फूलों से खूब सजाया। घर के सेहन में एक ज़रकार शामियाना तान कर उसके नीचे एक खूबसूरत तख्त बिछाया। इस तख्त पर रेशमी तकियों और गद्दों के दरमियान इस मटके को जमा के रख दिया। दो खुशपोश निहंग अकाली मुलाजिम रख लिए जो मोरछल पंखे उठाए हर वक्त हाजिर रहते थे और बड़े अदब से मटके पर आहिस्ता आहिस्ता पंखा हिलाते रहते थे। चौधरी मेहताबुद्दीन ने चारदांगे आलम ये चर्चा कर दिया कि यही वो मुकद्दस मटका है जिसमें बाबा शहाबुद्दीन ने गुरु साहब को छुपा के रखा था। पहले इक्का दुक्का सिख मटके की ज़ियारत के लिए आए, फिर अकीदतमंद देवियाँ चढ़ावे के फूल, हलवा, मिठाइयाँ और फल लाकर रोशन करने लगी। चंद महीनों के बाद जब सिंह सभा के मौका पर चमकौर में सिखों का सालाना इज्तिमा हुआ तो हज़ारों ज़ायरीन ने मटके को ताज़ीम दी। चौधरी मेहताबुद्दीन ने ताज़ीम देने का अमली तरीका ये राइज कर रखा था कि अकीदतमंद पहले हाथ जोड़कर मटके को नमस्कार करते थे, फिर घुटनों के बल झुककर इसे बसद अदब एहतराम छूते थे और आखिर में चांदी के रुपयों या सोने की मोहरों का नजराना मटके में डाल देते थे। पहली सिंह सभा पर 1,500-2 हज़ार रुपये जमा हुए, दूसरी पर 5-6 हज़ार और इसी तरह बढ़ते आखिर ऐसा वक्त भी आ गया कि सिंह सभा के रोज़ मटका बार बार भरता था और बार बार खाली होता था। 5-7 वर्ष में चौधरी मेहताबुद्दीन एक मामूली नील फरोश से तरक्की करके लखपति रईस बन गए। चमकौर साहब के इर्द गिर्द उन्होंने सैकड़ों एकड़ अराजी खरीद ली और बाबा शहाबुद्दीन के कच्चे मकान को मसमार करके एक आलीशान हवेली तामीर करवा ली जिसके चुबारे की छत बुलंदी में आसपास के गुरुद्वारों की किलिस का मुकाबला करती थी। गरनथियों को ये गुस्ताखी नागवार गुजरी। यूं भी कुछ अरसे से जुमला गरनथी चौधरी मेहताबुद्दीन से खार खाए बैठे थे। मटके की बढ़ती हुई मकबूलियत ने गुरुद्वारों की आमदनी पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया था और चौधरी मेहताबुद्दीन की रोज़ अफजूम अमारत में गरनथियों को अपने हकूक़ का खून नज़र आ रहा था। इधर सिखों में सलाह मशवरे शुरू हुए कि चौधरी मेहताबुद्दीन के चुबारे की बुलंदी गुरुद्वारों के किलिस से बहरहाल कमतर होनी चाहिए। उधर चौधरी मेहताब साहब ने नहले पर दहला मारा और इस साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उन्होंने अपने चुबारे की छत पर सिख पंथ के बेशुमार झंडे गाड़ दिए। अंदर वही सरकार शामियाना तान कर तख्तपोश बिछाया और तख्तपोश पर रेशमी गद्दों और गदेलों के दरमियान नील का खाली मटका जमा के रख दिया। अब यह कमरा चुबारा मटका साहब कहलाने लगा और सिखों में दूर दूर तक शोहरत हो गई कि वाह भाई वाह, चौधरी मेहताबुद्दीन ने तो कमाल कर दिया। अपने खर्च पर मटका साहब के लिए ऐसा बुलंद दोबाला चुबारा बनवाया है कि चमकौर के गुरुद्वारों को भी मात कर दिया। हर सिंह सभा के बाद चौधरी मेहताबुद्दीन सोने चांदी के सिक्कों को गलाकर सलाखों में ढाल लेते थे और उन सलाखों को तांबे की गागरों में भरकर अपनी हवेली की अंदरूनी दीवारों में खुफिया तौर पर गाड़ देते थे। इस खजाने की हिफाजत के लिए चौधरी साहब ने एक निराली तरकीब निकाली थी। उन्होंने 8-10 कारी और हाफिज जमा करके मुलाजिम रख लिए। अंदर के कमरे में हर वक्त कारी बारी बारी 2-2, 3-3 घंटे बाबा शहाबुद्दीन के लिए कुरान ख़वानी करते थे। 1-2 नौकर उनकी खिदमत पर हमा वक्त मामूर रहते थे। चुनाचे अंदरूनी कमरों में 24 घंटे चिराग जलता रहता था और कुरान ख़वानी होती रहती थी। एक पंथ 2 काज।
ہم خرما واہم ثواب۔ بابا شہاب الدین کی روح کو اصالِ ثواب بھی ہوتا رہتا تھا اور چودھری مہتاب الدین کے گڑھے ہوئے خزانے کی حفاظت بھی بعنوان شائستہ ہوتی رہتی تھی۔ دن رات قرآن خوانی کی خبر پھیلی تو لوگوں نے فرتے حیرت و مسرت سے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ واہ بھائی واہ، چودھری مہتاب الدین کی کیا بات ہے! بابا صاحب کی روح پاک کے لیے دن رات چراغ جلاتا اور قرآن شریف پڑھواتا ہے۔ چودھری صاحب نے بھی اپنی سعادت مندی کا مزید ثبوت دینے کے لیے بابا شہاب الدین کے مزار کی مرمت پر بے دریغ روپیہ خرچ کیا۔ قبر کا تعویذ بیش بہا سنگ مرمر کا بنوایا اور فرش اور دیواروں پر بے شمار چھوٹے چھوٹے خوشنما آئینے چڑھوا دیے۔ اب مزار پر ایک چراغ جلتا تھا۔ فرش اور دیواروں پر اس کے سینکڑوں عکس جگمگا اٹھتے تھے۔ عقیدت مند سرشار ہو کر جھومتے تھے اور چودھری مہتاب الدین کی امارت اور سخاوت کے گن گاتے تھے۔ دین کی طرف سے بے نیاز ہو کر اب چودھری مہتاب الدین نے اپنی دولت کا رخ دنیا کی طرف بھی موڑنا شروع کر دیا۔ حویلی کے بڑے احاطے میں صبح و شام دربار لگا کر بیٹھنے لگے۔ سرخ بانات پر سنہری گوٹ کا شامیانہ لگتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک میرے سونے رب دے حوالے۔